सो हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया फॉर लैपटॉप्स। वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वेब पे रिलीज किया। वी गॉट like 100,000 downloads, all organic in 3 months. Wow. There were 1 million downloads in 1 year. Then we took this operating system to all these Indian OEMs, Micromax, Lava, asking them कि आप यार ये नई कैटेगरी बनाओ। सबने मना कर दिया, ठीक है कि नहीं ये तो कैटेगरी नहीं बनेगी, ये कुछ नहीं है, एंड्रॉइड लैपटॉप कुछ नहीं चलेगा, ये होता ही नहीं है। लैपटॉप तो विंडोज लैपटॉप होता है या फिर मैकबुक होते हैं। आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तब आपने एक कुछ तो एनर्जी दैट got you know pushing it, that was pushing you. What was it? मैं कहता हूँ for an entrepreneur, and थोड़ा controversial होगा but why is it said कि यार दोस्तों के साथ नहीं धंधा करना चाहिए? तो बहुत डार्क है ये। So it's okay if it's dark. हाँ तो डेप्थ बताता हूँ मैं इसकी एक्चुअली क्या है। Hello guys, welcome to the first episode of Taste Talks by Tanish. On our first podcast, we have Chitranshu Mahant as our guest, CEO and founder of Primebook OS. ये podcast में we learn about his life journey and how sales are to be done. So basically, this episode is going to have a lot of takeaways for you. Keep watching this video till end, like, share and subscribe, and also don't forget to comment about how you like this video. Thank you guys. हमारे साथ है चित्रांशु सर from Primebook OS. आप सर मत बोलो सर नहीं सर, but the way you have worked, आप हमेशा मेरे सीनियर रहेंगे and I'm very inspired by your work. Thank you. So sir, please tell your our audience about you, about Primebook, how it started, how an IT guy from Delhi turned into an entrepreneur. I come from a very small town in MP. Town name is Dabra. It's near Gwalior. It's a 50,000 population town. Oh. Then I did my schooling from a boarding school here in Delhi. फिर boarding complete करने के बाद I went back to Gwalior to study for IIT. Then I graduated from IIT Delhi in 2015. So in IIT when I entered, I thought कि MBA कर लेंगे या IAS की कोचिंग कर लेंगे. I did not know that there is an opportunity called entrepreneurship as well. जब पढ़ाई कर रहे थे तब it was very new, 2011 entry हूँ मैं IIT में. But eventually when I got into college and seniors were doing some business or the other, and I was more kind of a more street smart guy than a techie than an engineer techie. Okay. So I used to do small businesses in college. So I used to sell t-shirts, I used to sell t-shirt for first year, right, with all those attitude wali quotations, I am what you dream to be. सही है क्योंकि आईटी में बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है काफी एटीट्यूड। वाओ सर, मतलब मैं आप ना एक ऐसे स्टूडियस काइंड ऑफ वाइब देते हो और उसमें आप हट के एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी। आपको ऐसा आप लाइक कोई भी आपसे फर्स्ट टाइम मिलेगा ना उसको लगेगा कि यू आर अ स्टूडियस काइंड ऑफ गाय, किताबी कीड़ा एकदम। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अपोजिट हूं मैं। ठीक है सर। सो फिर टी-शर्ट्स, तो फिर टी-शर्ट बिजनेस किया आईआईटी में 2 साल, काफी अच्छे पैसे बनाए। बट वहीं से आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू माय सीनियर्स, ठीक है, एंड दे थॉट कि आई एम एबल टू वर्क विद पीपल, मैनेज पीपल, दैट काइंड जो कॉलेज में करते हैं। हां जी। So that's how I got into entrepreneurship. So the first company after graduation, so I did not sit on placement. I really liked being an entrepreneur, अच्छा, so आपने कभी corporate world you didn't enter? नहीं किया, I didn't enter. So but I joined another startup in 2015, and they were like just a year old, and it was a toy company by IT Delhi seniors only. Okay. They make DIY toys for kids, like Lego for India, that kind of a company. So 2.5, 3 years I worked for that company. So that was basically a manufacturing company, am I right? They manufacture also toys, and it's a brand, Smartivity. They make toys, they manufacture, they sell everything. Okay. They export. So I was handling distribution and sales. So I may look studious, but I take care of sales actually. Same as well, sir. Even I look after sales only. Because मजा आता है sales. Exactly. Yeah. So 2-3 years I worked there, but I always want to do something of my own. And that's when I realized that I should develop something, bring something. I did not had any idea क्या बनाना है. ठीक है. Then मेरा roommate Aman, who is right now my partner in the company. Yes, I met him. Yeah, you met him? Yes, I did. I was thinking of calling him also, but अपने पास mic ही 2 थे, तो मैं बोला अगर rotation में हो सकता तो मैं बुला सकता। Okay. So hard things about starting up. Exactly. Yeah.
So फिर 2018 में अमन was working with Paytm हाँ at that point of time. So हम दोनों ने कंपनी छोड़ दी और फिर हमने फिगर आउट किया क्या करें. Then क्योंकि पहले चीज टेक अवे ये है, मेरे को ऐसा लगता है, आई थिंक अब तो काफी रिसोर्सेज आ गई हैं, बट यू कांट डू टू थिंग्स टुगेदर. दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसे फ्रीलांस कर लिया या फिर कंपनी खोल ली या मेरे को लगता है कि अगर कर रहे हो, इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग देन इट हैज टू बी कंप्लीटली इन इट, राइट. सो फिर वहां से तो कंपनी छोड़ दी तो फिर कुछ काम नहीं था 3-4 महीने कि क्या बिल्ड करना है. बट देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ऑप्शंस. तो सबसे पहले हमने नैरो डाउन किया कि वी वांट टू गेट इनटू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. Consumer electronics. हाँ. Okay. So what is exactly consumer electronics? It's So, like products who can be consumed by the normal citizens. Exactly. Laptop, Exactly. Laptop, phones, tablets, TV. Mm-hmm. These are all part of consumer electronics. The Okay. electronics. So there are two segments: consumer appliances Uh-huh. and consumer electronics. Appliances are the older one: washing machines, Okay. mixie, microwave, fridge. Uh-huh. And electronics are the newer segment of computers, basically. Mm-hmm. Computers inside your home. Right. So we narrowed down consumer electronics. Hmm. उसमें भी थॉट ये था कि दिस इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, राइट, हाँ. और कुछ बना लेंगे, कुछ बन जाएगा इस इंडस्ट्री में, तो मतलब एक पॉजिटिव हाँ ये thought तो था. हाँ, क्योंकि ऐसा अब तो क्या है, बहुत मटेरियल है, मे बी उस टाइम भी होता होगा, बट हम जिस तरह से अप्रोच किया वो बहुत ही नाइव अप्रोच थी, रॉ एकदम रॉ अप्रोच थी हाँ. टुवर्ड्स आइडिया कि ठीक है ये बहुत बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वर्ल्ड की टॉप कंपनीज इंडस्ट्रीज में काम करती है. Exactly. एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, HP. Right. So all the top 10 companies, oil वगैरह को हटा दो, are consumer electronic companies, you know, Samsung, all of these. Yes, yes. तो यही thought के साथ we entered into the industry. Then we thought कि क्या build करना है, and definitely you have to build innovation. You know, अगर कुछ large scale impact लाना है तो innovation करना पड़ेगा. बस वहीं से फिर हमने Kickstarter देखा. हाँ. किकस्टार्टर में आइडियाज फिगर आउट किए, तो वहां पर हमें सबसे पहली बार आइडिया आया जिसका नाम था सुपर बुक. Okay. वो उस टाइम वाज द हाईएस्ट फंडेड किकस्टार्टर प्रोजेक्ट. इट वाज बेसिकली एन एक्सेसरी टू योर स्मार्टफोन. सो थिंक ऑफ इट लाइक अ डम शेल. एक लैपटॉप है, लैपटॉप फॉर्म फैक्टर है खाली, उसको आप अपने फोन से कनेक्ट करते हो. फोन इज लाइक अ सीपीयू नाउ एंड दिस इज द कीबोर्ड एंड स्क्रीन. Okay. दिस वाज द इनिशियल आइडिया. समझ गया कि Yes, एक yes. मैं 5,000 रुपए की शेल बेच रहा हूँ आपको खाली, हाँ. आप अपने एग्जिस्टिंग फोन के साथ कनेक्ट कर करके दोगे और ये सीपीयू बन गया, और इधर अब आप पूरा वर्ड, ऑफिस, सब हैंडल कर सकते हैं, ब्राउजिंग सब चलाओ. तो यहाँ से ये आइडिया पिक किया कि हमें लगा यार ये बहुत अच्छा है स्पेस. एक तो अच्छी इंसाइट ये है, जो यूजर सुन सके वो अच्छी इंसाइट ये है कि यू नो ऐसी लाइन नहीं है कि आप अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो यू गेट इनटू द शवल बिजनेस. हाँ जी. है ना, ऐसी लाइन होती है ना. तो विद अ सिमिलर थॉट भी कि यार फोन्स तो आर यू नो सेलिंग लाइक booming. So let us build an accessory. And if you see, so many phone accessory business have gone so large. Yes. Boat and all were phone accessories. Right? They used to sell cables and then eventually entered into TWS. Right. So that's how we started this journey. So sir, आपने जब स्टार्टअप छोड़ा till you actually started executing that project, ठीक है, उसके मंथ में, उसके बीच में 3-4 मंथ्स का ही गैप था कि it took more? नहीं 6-7 मंथ्स का गैप 6-7 months. सर ऐसा आता है ना कि यार, मतलब जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल दूंगा. I was gonna start this podcast, ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा था कि यार जिस दिन मैं परफेक्ट बन जाऊंगा उस दिन मैं शुरू करूंगा, ठीक है, और उस दिन वो दिन का वेट करने के चक्कर में I wasted my 3 weeks, ठीक है. I wanted to start it on my birthday but I couldn't apparently, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यार मैं परफेक्ट बनूंगा फिर मैं एंटर करूंगा ताकि मैं एकदम अच्छे से क्वेश्चंस पूछूं, अच्छे से बात करूं. बट देन मेरे को एक दिन मेरे भैया और मेरी मम्मा ने बैठा के सिखाया, ठीक है, कि तू जब शुरू करेगा तब तू सीखेगा. Exactly. And then you will reach there. Exactly. So ये जो आपका ये एग्जीक्यूटिव मंथ था, ठीक है, जिसमें यू हैड टू यू नो आपने आइडिया निकाला, ठीक है, आपने मार्केट रिसर्च की, है ना, ये 6 मंथ्स में, एंड देन आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है. तो ये 6 मंथ्स में आपका मेरे को मार्केट रिसर्च का भी जर्नी जानना है, ठीक है. जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ चुका था, आपने किकस्टार्ट तक एक्सप्लोर कर लिया था, आई एम श्योर इट वाज अ वेरी डेप्थ वाला रिसर्च. करेक्ट. So I want you to give a takeaway to our audience कि like आपने अगर दिमाग में आ गया है, not to wait for the perfect time. करेक्ट. ठीक है. So please. तो मेरा पर्सपेक्टिव ऑन वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम ये है कि
कोई परफेक्ट टाइम होता ही नहीं है, हाँ क्योंकि ये तो मैराथन है. So you have to keep on just running. So there is no start time as such. ओके So तो परफेक्ट टाइम तो कुछ है नहीं. मतलब आप आज भी, आप अभी 3 वीक पहले भी कर लेते, अभी हाँ. आपने 3 वीक बाद किया, आप 1 साल बाद भी कर लोगे, उसके 2 साल बाद पीछे देखोगे, लगेगा यार कितना गलत करता था मैं कि अब ये कर लेता. तो Right. इट्स ऑलवेज अ लर्निंग फेज. Hmm. So learning will start once you jump onto it. Hmm. As long as you are out of it, it's just theoretical, Right. right? So there's no perfect time. सही है. So आपने फिर you started in the 6th month itself or So 6 month was the time when we, so we both are not techies, Okay. right? Me and Aman. हाँ जी. Aman, I was into sales and Aman was into ops in Paytm. So he was handling reverse logistics for their warehouses, Okay. Paytm warehouses. हाँ. So then we got our first hired, who was also a CTO, who is right now a CTO, Hmm. and like a co-founder in the company. That guy is Umang Likha. Uh-huh. So that is also very interesting. It was a luck how we found him. Okay. How did you find him, sir? So when I was working with Smartivity, there were young college guys who used to work there. Uh-huh. So I started my company. So they invited me in their college कि आप आओ गेस्ट बन के और कुछ ज्ञान देना. तो मैंने कहा कि मेरे को एक बंदा भी चाहिए, तो मैं हायरिंग भी करूंगा. हाँ. तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइम बुक और जो सुपर बुक था, वो रिक्वायरमेंट मेरे मन में थी, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज. Wow, मतलब you were quite clear with your vision. right there. हाँ, या मतलब वो फर्स्ट सेट ऑफ V1 Hmm. version 1, you know what you want, right? Exactly. हाँ. So I'm sure with this podcast V1 you know Yes. कि जैसे you started कि यार मेरे को ऑडियंस के लिए Take away चाहिए. टेक अवे Yes. चाहिए, राइट? दिस इज द वर्जन 1. Yes. इवेंचुअली यू लर्न कि नहीं, टेक अवे से कुछ नहीं हो रहा. अरे हाँ. मेरे को कुछ ये और भी चाहिए. हाँ. Add धीरे धीरे हाँ. addition होता जाएगा. Yes sir. So उमंग को फिर रेज्यूमे आया उमंग का, मैंने देखा एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया. मैंने कहा इस बंदे ने तो ये सब किया हुआ है. सो उमंग इज वन ऑफ दोस गाइस हु इज नॉट फ्रॉम आईआईटी हाँ. बट वाज अ टेक गीक. okay. He used to tinker with his smartphone in class 11 12. You know, I was studying coaching, ऐसा. physics, maths, but Umang was a real techie who was tinkering with his phone, हाँ. kind of, you know, improving performance, Hmm. changing the OS of the phone, theme of the phone, all of that. Okay. And just by enthusiasm. हाँ हाँ. कोई उसका जॉब नहीं है ये. ठीक है. So मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा उमंग से मिलके, and I offered him then and there. He was in his 8th semester. Okay. हाँ, कॉलेज में College में. 8th लास्ट सेमेस्टर में था, एंड ही जॉइन नेक्स्ट डे. Wow. सो उसके भी गट्स है कि वो आ गया, कॉलेज भी नहीं कंप्लीट किया, इवेंचुअली हिट इट. He was enthusiastic too about it, right? Exactly. So that's how Umang joined, and then the real execution started. Hmm. क्योंकि my job was just selling stories at that point of time, हाँ right? जी. Aman's job was getting the supply chain for the samples, हाँ. and Umang's job was building the software, ensuring that you have a seamless experience of connecting and whole phone CPU can be used here. Okay. So that's how the team got assembled and we started the journey. Very nice. फिर 2018 to 22 is a very humbling period. Was a very humbling period, you know. मतलब जब rejections face करने पड़ते हैं. है ना? Exactly. जब And I pitch saw करना a lot of things in the business, personal life. So 2018 we started this idea, and then it gets evolved in Right. its own cycle. From a accessory we converted into a complete operating system company. Okay. And we thought कि यार जितने में मैं accessory बना रहा हूँ उतने में पूरा लैपटॉप ही बन सकता है stand alone, हाँ. not a smartphone accessory but a standalone laptop. तो इस तरह से ये evolve होता हो गया. And then the time came when we figured out our thesis, complete thesis, Mhm. which was that in the journey of personal computers, personal computers started in India in 1980s. Scientists and researchers wanted in 1980s. 2000s is the time when businesses were getting personal computers for themselves, and when Microsoft became #1 company in the world. Mhm. Then 2020 is the time when this new category is coming, which are students. And for them, we want to design the personal computer. Right. That's the thesis we built. And we thought personal computer for student is basically, in India, all the education ecosystem is Android first. And a better hardware is a laptop, not smartphone or tablet, where there is Android. So we thought, let us build the best of both worlds, which is Android app ecosystem for education and laptop form factor, and PrimeBook Wow. as a thesis came along.
So let us build this new category of personal computer for students, which is a Android laptop. Wow. Yeah. So सर आपने जैसे मेरे को बताया अभी कि ये 2 years में आपने कंपनी में भी काफी evolution लाया and it was in personal life also. Correct. So sir, what evolution happened in your personal life as well? Was it as an entrepreneur or was it like it's very entrepreneurial. When I look back, I feel कि बहुत tough time था. So 2018 we started this company. PrimeOS हमने बना लिया. PrimeOS got amazing response. So हमने एक operating system बनाया जो Android based operating system है for laptops. वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वेब पे रिलीज किया. वी गॉट लाइक 100,000 डाउनलोड्स, ऑल ऑर्गेनिक इन 3 months. Wow. All organic. So all the people globally started talking about it. डेली हमारे बारे में यूट्यूब वीडियोस देने लगी कि अरे नया ओएस आया है, बहुत बढ़िया चलता है. हमें लगा कि ये तो सही है. Then we took this operating system to all these Indian OEMs, Micromax, Lava, Intex. OEMs, can you just explain? Original equipment manufacturers. Okay. Basically the brands like Lava, Micromax, Indian Intex, that was there. Yes, Eyeball. So we took the OS to all of them, asking them कि आप यार ये नई कैटेगरी बनाओ, हम तो सॉफ्टवेयर. So we became a software company. हमने तो ये प्रोडक्ट बनाया है जिस OS को लोग बहुत लव कर रहे हैं, आप इसको डिवाइस में डाल के बेचो, क्योंकि because for an OS you need a device for it to monetize, right? सबने मना कर दिया, ठीक है, कि नहीं ये तो कैटेगरी नहीं बनेगी, ये कुछ नहीं है, एंड्रॉइड लैपटॉप कुछ नहीं चलेगा, ये होता ही नहीं है. लैपटॉप तो विंडोज लैपटॉप होता है या फिर मैकबुक होते हैं, ठीक है. एंड्रॉइड लैपटॉप क्या होता है? एंड्रॉइड लैपटॉप क्या होता है? सो देन 2020 केम, कोविड आ गया, एंड वी वर इन अ स्टेज वेयर वी वर फेमस बट वी वर नॉट एबल टू मोनेटाइज. ओएस बहुत लोगों को पता था. देयर वर 1 million डाउनलोड्स इन 1 year. अगेन ऑल ऑर्गेनिक. So but there was no monetization as such. एड्स चला लो बट एड्स आर नॉट मोनेटाइजेशन. एग्जैक्टली. अपना ROI थोड़ा सा कैलकुलेटेड रहता है. एग्जैक्टली. फिर 2020 में कोविड केम. कोविड में वी वर ऑल गॉन डाउन टू जीरो, ठीक है, और we were just left 3-4 people. मतलब at one point in time we were 25 people company from 2018 to 2020, out of which 12-14 were engineers only. Okay. Right, and 5-6 were B2B. And we were talking with all these Micromax, Lava, we were trying a lot of brands to pick this operating system and launch their laptops. 2020 happened, COVID happened. So I got married also in COVID, and I was not earning money. Okay. My peers were earning a lot. This is the real pay. Okay. Yeah. All from IT, so they were earning a really nice. मेरा बस OS चल रहा है. I was not making money. ऐसे आजू बाजू को देख के ऐसा डिमोटिवेशन टाइप्स लगता है, काफी लगता है, है ना. So and then I got married, so it's a pressure in itself. You have now a family to own. Exactly. Then I lost my mom in COVID, and then came a time, I thought कि ना मैं, and I started getting offers for consultant, right, which was a easy money. तो जितने ये पुराने, तो मैंने नेटवर्क बनाया हुआ था, लोग जानते थे कि यार ये कोई फाइट मार रहा है, एंड स्मार्ट गाय, डिजिटल फर्स्ट गाय, राइट. तो जितने भी ओल्ड स्कूल बिजनेसेस थे, दे वांटेड मी एज अ कंसल्टेंट कि यार तुम हमें थोड़ा डिजिटल फर्स्ट बना दो, डिजिटल मार्केटिंग सेटअप कर दो. ठीक है. So, आपने किया? मैंने एक कॉल करी थी उस टाइम, फर्स्ट कॉल. फिर मेरे को मेरी वाइफ ने बोला नहीं, मत करो, मतलब तुम बहुत रिग्रेट करोगे. क्योंकि वंस यू स्टार्ट दैट डायरेक्शन, तो फिर आप उसी में एग्जैक्टली फिर मैं पैसे बनाने लगता. देन देयर इज नो लुकिंग बैक, राइट. But somehow I survived, and I'm very thankful I survived. 2020. That is very, like, it's very tough to stick what you like. Exactly. And even when you are at the bottom of the career, जब आपको लोग reject कर रहे हैं, तब आपने एक कुछ तो energy that got you, pushing it, that was pushing you. What was it? तो उसमें I was being very practical in that sense, इसलिए मैं कहता हूँ for an entrepreneur, and थोड़ा controversial होगा, but one has to be a little upper middle class, for if you are starting जॉब कर ली, पैसा बना लिया, इज अ डिफरेंट थिंग. मतलब तुम्हारे पास 18 से 24 महीने का पैसा होना चाहिए, या तो अगर जॉब करके पैसा बना लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर तुम्हें थोड़ा अपर मिडिल क्लास होना चाहिए. थैंकफुली मैं वो अपर मिडिल क्लास था कि मेरे में प्रैक्टिकल कोई चैलेंज नहीं था. मतलब आई हैव माय ओन होम हियर, आई हैव माय कार,
ये बहुत जरूरी है भाई। Exactly, गाड़ी गाड़ी। Exactly, So understand what I'm basics saying? of you तो have, basics सॉल्व थे। हम्म। तो प्रैक्टिकल कोई ऐसा चैलेंज नहीं था, इट वाज जस्ट माय इमोशनल चैलेंजेस, हाँ। माय हेड बीइंग एट द राइट प्लेस वाज द चैलेंज, जो 2020 पूरा साल निकला। बट somehow we survived. So what was pushing you? Like आपको हाँ, strength क्या दे रहा था? तो फिर मेरे को लगता था कि एक तो मेरे को लगता था मैं स्टड हूँ, हाँ। ठीक है, कि मेरे को पता है मैं स्टड हूँ, और अभी confidence- निकल के नहीं आ रहा है, हाँ। बिजनेस में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट मेरे को अंदर से पता है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम चलते आ रहे हैं, स्कूल में भी मैं स्टड था भाई, मतलब लोग जानते थे कि यार ये तो तेज लड़का है, हाँ। कॉलेज में भी मैं स्टड था, सीनियर स्काउट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, जिस लेवल पे मैं ग्रुप में, So मतलब you knew what your हाँ, power is, strength हाँ, is. एग्जैक्टली। एक ये था, दूसरा फैमिली, उनने कभी ऐसा नहीं बोला क्या कर रहा है या कुछ बन नहीं रहा है, बिल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि 4-5 साल इज अ वेरी बिग पीरियड। Yes, it I is. started doing real business in 2023, Hmm. financial year 2023 end. हाँ। So तो ये था, तो रियल पुश था कि मेरे को पता था मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कर सकता हूँ, जो भी लोग आसपास कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, वो मेरे को इतने स्टड नहीं लगते थे, तब भी वो So- कर रहे तो So another takeaway would be believe in yourself, एग्जैक्टली, है ना? Believe in what you do, yeah. right? So sir, अभी since you are a sales guy, ठीक है, how was your first 1 lakh का sale? Like it was organic, I know you told me, नहीं, but it was just download, sale was not 1 lakh का नहीं हुआ था। ठीक है, but how was your how was the roadway to the 1 lakh sales you made? हाँ, श्योर मैं समझ गया। तो बेसिकली क्या हुआ था, क्योंकि 2020 में हमें सरवाइव करना था, हम 3-4 लोग ही थे, देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग, वी पिवटेड अ लिटिल फ्रॉम प्राइम ओएस, एंड प्राइम ओएस में एक स्टैक था पेरेंटल कंट्रोल, टेक्नोलॉजी जो स्टैक है उसमें एक पेरेंटल कंट्रोल था, तो वो पेरेंटल कंट्रोल हम बेचने लगे थे एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स हु वर हैविंग टैबलेट्स, कि आप लोग ये पेरेंटल कंट्रोल लगा लो, 300 रुपए पर ईयर लाइसेंस दो हमें, और आप अब बच्चों को जो टैबलेट्स दे रहे हो वो सेफ है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था एंड एवरीवन वाज गेटिंग एक्सेस टू टैबलेट। तब हमने ऐसे 20 लाख 25 लाख का साल किया था। वाओ। हाँ, वो तो मेरा तो सेल का वही रहता है कि अच्छी सेल वो है जिसमें अगर 1 घंटे की मीटिंग है तो आप 20 मिनट बोलो, बंदा 40 मिनट बोले, देन इट्स अ सक्सेसफुल मीटिंग। अच्छा, सो सेल जो सेल कर रहा है वो 20 मिनट बोले, अगला बंदा 40 मिनट बोले, देन इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मीटिंग। व्हाई इज दैट? मतलब अगर वो 20 मिनट में हम लोग को हमारा प्रोडक्ट भी समझाना है, सामने वाले का माइंड भी चेंज करना है, एंड वी हैव टू मेक हिम हैव अ कन्वर्सेशन विद अस फॉर एन आवर, वो कैसे होगा? तो उसमें स्ट्रेटजी है, 2 है। पहली है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, तो क्योंकि अगला बंदा इज ओनली गिविंग आंसर्स एंड स्टोरीज जस्ट लाइक वी आर डूइंग, नो राइट, तो आपका जॉब हो गया कि बस यू हैव टू जस्ट इंश्योर दैट यू आर ऑलवेज आस्किंग द राइट क्वेश्चन वन आफ्टर अनदर, तो you are able to build a relationship, you are able to give confidence, and in those 20 minutes once you are able to complete your questions, you package the same product and give it to them. Okay. कि सर अब प्राइम बुक के बहुत यूज केसेस हैं, तो बस आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं, फिर आप पूरी कहानी सुनाओगे, कब स्टार्ट किया, क्या बैकग्राउंड है, कुछ भी, ठीक है, हाँ जी, एंड देन यू इवेंचुअली पैकेज इट एंड टेल देम कि सर एग्जैक्टली ये सब चीज जो आपने बताई उसके लिए ये रहा प्राइम बुक, ओके, अफोर्डेबल ये। सो सर अभी आपने तो कर दिया कि सेल्स हो गया, ठीक है, सो बेसिकली इट वाज आस्किंग द राइट क्वेश्चन, राइट, एंड आपके लिए सक्सेसफुल टीम लाइक सेल्स मीटिंग तब है जब सामने वाला आपके ज्यादा बात करे। एग्जैक्टली। सो थर्ड सर, जब हम लोग एक बात करते हैं स्केल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना होता है, ठीक है, सो हाउ टू प्लेस द प्रोडक्ट इन अ वे दैट योर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स आउट, ठीक है, आप प्लेस कैसे करोगे, और वो इसमें आपका स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर द वे यू प्रेजेंट इट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टूड। सो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट का एंड बिजनेस गोल है वर्ड ऑफ माउथ, ऑलवेज, राइट, एवरी प्रोडक्ट का एंड बिजनेस गोल तो वर्ड ऑफ माउथ है, ठीक है, तो ये तो बॉटम लाइन हो गई, इसको हटाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल आउट, उन दोनों को अलग अलग रखते हैं सबसे पहले। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट एज द वर्ड सेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, सो फॉर यू शर्मा जी का आटा, द कैटेगरी हैज आई मे से डिस्ट्रीब्यूशन अ लॉट इन जनरल ट्रेड एज वेल, ठीक है,
और जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, उसके बाद आपका क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स ऑल्सो आई थिंक, राइट? तो दैट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. सो यू हैव टू इंश्योर कि जो ऑडियंस शेयर आ रहा है वो कितना टच पॉइंट आप ले सकते हो, कन्वर्ट भी करना है सेल्स में. उसके नेक्स्ट स्टेप आता है सेल आउट. हाँ जी. तो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप तो इज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, राइट? और इवेंचुअल ग्रोथ. फिर सेल आउट इज योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग. क्विक कॉमर्स में जो सेल आउट कर रहे हो या जनरल ट्रेड में जो स्कीम्स बना रहे हो, ऑल ऑफ दैट. सो मैंने सर एक और चीज सुनी है, ठीक है, जो मैंने और ये मैंने मैक्सिमम लोगों से सुना. सो ऐसा बोलते हैं कि अपने दोस्त के साथ कभी धंधा नहीं करना. ठीक है, ये मेरे को बहुत लोगों ने बोला है. बिल्कुल सही बात बोली. ऐसा क्यों है? ठीक है, एंड अगर आप जैसे आप अभी कर रहे हो, इतने साल से आपने अपने दोस्तों के साथ ही धंधा किया, ठीक है, सो हाउ डिड इट एंड अप, हाउ इज इट गोइंग, एंड व्हाई इज इट सेड कि यार दोस्तों के साथ नहीं धंधा करना चाहिए? देखो बहुत डार्क है ये जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की जो पार्टनरशिप है ना, ये इजी नहीं है. जैसे आपने बोला अपन प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने बोला था यू वर वेरी प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ईयर. आई वांट अ प्रैक्टिकल आंसर फ्रॉम यू कि ऐसा व्हाई इज इट सेड. सो इट्स ओके इफ इट्स डार्क. हाँ, तो डेप्थ बताता हूँ मैं इसकी. एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये रिलेशन जैसे मैरिज होती है, ठीक है, मैरिज की रिलेशनशिप में कितनी लेयर होती है ये सिर्फ वो कपल समझ सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं. वो लेयर कैन गो टू एक्सप्रेशन ऑफ लव जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जिसकी कोई लिमिट नहीं है. है ना, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लाइक देयर इज अ प्लेस वेयर यू आर वेरी एक्सप्रेसिव टू देम एज योर कंफर्ट योर. हां, तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स की कोई लिमिट नहीं होती है इन अ मैरिज. सेम विद पार्टनर्स इन अ कंपनी, क्योंकि हम इन अ वे गोल है 10-15 साल साथ काम करने का, राइट? और उसमें भी तुम 8 से 9 घंटे एक साथ रहते हो. तो 10-15 साल 8-9 घंटे एक साथ, तो वेरिएबल की लिमिट सोच लो कितने वेरिएबल है. मतलब कल किसी का कुछ हो गया, कुछ हो गया, उसमें झगड़े भी होंगे, उसमें आप लोग का ऐसा भी होगा कि यार वी आर नॉट एग्रीइंग टू अ सर्टेन पॉइंट. बहुत सारी चीजें होती है. छोटे होते हो तो ईगो भी होता है. जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते तो यही होता है सीईओ कौन बनेगा. तब पता नहीं होता ना, राइट? वंस तो बहुत सारे उसमें चैलेंजेस होते हैं. दोस्त के साथ इसलिए नहीं करना चाहिए, मेरा इसमें ओपिनियन है. वर्क फ्रेंड के साथ जरूर करना चाहिए, पहली बात, जिसके आप अवेयर हो वर्क एथिक्स को लेके. फ्रेंडशिप एथिक्स इज वन विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. मतलब सबके प्लस माइनस है. फ्रेंडशिप एथिक्स के आप अवेयर हो किसी के कि यार ये मेरा बहुत लॉयल भाई है, ठीक है, कुछ भी हो जाए छोड़ता नहीं है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. अदरवाइज जो डाउन पीरियड था वो सबका ही था, बट बिकॉज वी वर अवेयर ऑफ ईच अदर्स फ्रेंडशिप एथिक्स, वी न्यू कि कोई ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है वर्क एथिक्स के भी अवेयर हो कि यार दिस गाय, everyone have their own set of work ethics, right? Discipline wise, intent wise, right, intelligence wise, focus wise, कि सबके अपने अपने वर्क एथिक्स होते हैं. वो अवेयर हो, देन इट्स अ ग्रेट डिसीजन कि दोनों एथिक्स हो. टफ इसलिए फ्रेंड के साथ यू आर नॉट अवेयर ऑफ देयर वर्क एथिक्स, राइट? तो तुम्हारी दोस्ती खराब हो जाती है. ये सबसे बड़ा इसका लॉस है. अगर अपन एक पॉइंट पुट करें, जैसे आप और अमन सर है, ठीक है, यू गाइस हैव अ सर्टेन पीओवी, सबका सेम पीओवी नहीं होता, करेक्ट. सो वो टाइम पे हाउ डू यू गाइस सेटल इट डाउन? जैसे अगर हमारे कोई ऑडियंस रहेगा जो अपने दोस्त के साथ ही धंधा कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद आके उन लोग का क्लैश हो रहा है, एक सर्टेन पॉइंट के आगे कि यार ये इससे सहमत नहीं है और दूसरा इससे सहमत नहीं है. सो आप उससे सेटल डाउन कैसे करते हो? हाउ डू यू रिजॉल्व इट टू यू नो वर्क प्रोसेस चलता रहे? तो जैसे देखो, स्केल पे तो आसान है ये करना. स्केल पे क्या है कि अभी जैसे कंपनी में डिपार्टमेंट्स है, अभी कंपनी स्केल हो गई है, सबकी डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, फाइनल कॉल है जिसका वो डिपार्टमेंट है, ठीक है. और उससे ऊपर जो थॉट प्रोसेस, उसमें जो सीईओ है उसकी फाइनल कॉल है, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन. अर्ली जब डिपार्टमेंट फिक्स नहीं होते थे, वो टाइम लगता है एक्चुअली उसमें, तो फिर लड़ाई भी होती है और फिर फाइनली वो टाइम लगता है कि इसलिए सीईओ बहुत जरूरी होता है कंपनी में, दैट देयर इज समवन जो डिसीजन को होल्ड नहीं करके बैठेगा. नाम ये चीफ एग्जीक्यूशन. तो कुछ भी गलत या सही, बट डिसीजन लेगा और आगे बढ़ेगा. हाँ, राइट. तो बाद में तो इजी हो जाता है, बट इनिशियल स्टेज में और बाद में तो क्या है, वो भी बात ना, सब अच्छा चल रहा है तो फिर चल रहा है, अच्छे हैं लोग. ये भी सही है सर. सो सर, मैंने आपके शार्क टैंक का एपिसोड भी देखा. सो as far as I know, before coming to Shark Tank, you already had investors in your company. Was it? हाँ, yes. है ना? So sir, जैसे आपने
initial stage maybe you were facing rejections for like from iBoy, from various companies in India. अपन जब एक इन्वेस्टर्स के पास भी जाते हैं अपन तब भी एक रिजेक्शन मैंने तो बहुत झेला है ना? हाँ बहुत ठीक है. So how do you make a pitch या फिर how do you actually pitch to an investor जिससे आप convince हो जाओ कि आप वो आपके अंदर invest करें, and what does an investor look? It's whether your company or it's the founders or it's just the balance sheet and they don't care about who it is. Again, so this is very very organic. It's not so scientific as you have given me options, right? अच्छा, sorry. It's not scientific. हाँ. It's very I must say emotional. So firstly it's founder driven. ठीक है, फाउंडर डिसीजन मेकिंग का 50-60% डिसीजन मेकिंग का वो होता है उसका रेशो. रिमेनिंग 40 में 20-30% आप मान लो वुड बी द इंडस्ट्री, क्योंकि फाउंडर और इंडस्ट्री नहीं बदलेगी, वो बहुत कम चांसेस है. वहीं पे कुछ घूम घुमा के वहीं बनू के फाउंडर कुछ एक पीएमएफ और स्केलेबल चीज बना देगा. लास्ट के 10% होते हैं जिसमें आई फील दे लुक फॉर ग्रोथ इंडिकेटर्स कि लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो फाउंडर सही लगा, इससे बात करके सही लगा, ही नोज हिज शिट, राइट. इंडस्ट्री सही लगी कि अच्छी इंडस्ट्री है, ग्रो करेगी, 5 साल बाद ग्रो करेगी. एंड लास्टली इज कि इसका 3-4 महीने में क्या ग्रोथ इंडिकेटर्स रहे हैं, स्पेशली लोगों को कितना मजा आ रहा है, राइट. दिस हैपेंस मोस्टली अर्ली स्टेज, और फिर ये बैलेंस शीट वगैरह तो लेट स्टेज पे. अच्छा, अभी अर्ली स्टेज पे नहीं. मतलब अभी जैसे अभी हम लोग करते हैं साल का 40-50 टाइप का बिजनेस करते हैं, तो उसमें अब नाउ दे आर लुकिंग फॉर अदर इंडिकेटर्स. सो अपार्ट फ्रॉम प्राइम बुक आप लोग 40-50 टाइप के बिजनेस करते हैं ऐसे? नहीं 40-50 सीआर का बिजनेस करते हैं इन प्राइम बुक एवरी ईयर. वेरी नाइस सर. सो दिस सो जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टू 40-50 सीआर. वाओ सर, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके. बट सर अगेन ठीक है, अपन जब इन्वेस्टर्स पहले तो इन्वेस्टर्स ढूंढे कैसे? आपने अपने फैमिली मेंबर्स से बात की थी पहले या फिर नो यू वेंट टू द एंजल इन्वेस्टर्स? हाँ, सो आई वेंट टू एंजल्स पे पहले तो चालू किया. तो फर्स्ट चेक आई रेज वाज 25 लाख रुपीस एट 2.5 करोड़ वैल्यूएशन. 10% आई गिव इन 2017-18. अभी तो कोई नहीं देता ये, अब तो बढ़ गया है. आई थिंक फर्स्ट चेक अगर कोई नॉन फाउंडर स्टार्टअप है जिसने स्टार्ट नहीं की कंपनी, 50 लाख इजिली 50 से 1 करोड़ का मिल सकता है विद 10% डाइल्यूशन आजकल. तो ये चल रहा है. तो वहां से रेस किया. फिर मोस्टली एंजल से ढूंढने का यही है कि वो एक टेल से दूसरी टेल पकड़ते चलना है कि यार ऐसे किसी से मिलो. सो इट्स अ कंप्लीट. सो सेल्स में जो फनलिंग होती है ना, एग्जैक्टली वैसा है. एग्जैक्टली वैसा ही. मैं वही पूछने वाला था नेक्स्ट कि ऐसा ही रहता है क्या? एग्जैक्टली वैसा ही है. तो आपको टॉप ऑफ द फनल बिल्ड करनी है अपने टिकट साइज के. मैं उसका हैक्स भी बता दूंगा. ठीक है, हैक्स है जैसे कौन सा चैनल है जिसमें सारी न्यूज है, इंट्रैकर खोलना. ठीक है, इंट्रैकर पे न्यूज सेक्शन में जाना, सर्च करना सीड एंजल सर्च करना, पेजेस नंबर आ जाएंगे. पेज नंबर पढ़ते जाना तो आ जाएगा दिस इन्वेस्टेड इन सीड, 4 नाम आएंगे. तो यू वुड नो इन पास्ट 12 years हाउ मेनी पीपल फंडेड एंड आर एक्टिव इन फंडिंग. ओके, तो आपके पास एक टॉप ऑफ द फनल लिस्ट तैयार हो गई. वन टेक अवे गाइस, याद रखना ये. तो टॉप ऑफ द फनल लिस्ट तैयार हो गई इन ट्रैकर पे चेस करके. और फिर आपने वो फनल अपनी अंदर करते गए. इंट्रो कॉल करी, जैसे हर अलग अलग सेल्स प्रोडक्ट. सो हियर यू आर सेलिंग शेयर्स, नो? एग्जैक्टली, राइट. सही है सर. सो मैं अभी लास्ट अपन एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? फिर हम लोग कंक्लूड कर देंगे मीटिंग. सो लास्ट क्वेश्चन. सो जैसे आपने बोला आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स, राइट? या what are topmost 3 questions which you think would always work, या फिर top 2 questions which would always work for a sales pitch? अच्छा, How do you figure out? स्पेसिफिक है, मैं इसको स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, फ्रेमवर्क स्पेसिफिक कोशिश करता हूँ. बिल्कुल सर, या फिर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी ट्राई कीजिए. हम लोग विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन. हाँ, जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो प्राइम बुक रिलेटेड ही. जैसे हम सबसे पहले तो हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि जो बायर है उसका यूजर कौन है. तो जितना डीप हम, और फॉर बिजनेस ऑल्सो, जितना डीप हम उस कॉन्वर्सेशन में यूजर में चलते जाएंगे ना,
तो हमारा प्रोडक्ट पोजिशनिंग उतना आसान हो जाएगा, जितना हम लोग उसको ही पुश करते जाएंगे यूजर में कि कौन चलाने वाला है, क्या चलाएगा, उसके बाद क्या यूसेज टाइम है, स्कूल में चलेगा, कोचिंग में चलेगा, घर में चलेगा, वन ऑन वन डिवाइस है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस है। जितना डीप हम बस वो यूजर में घुसते चले जाएंगे तो फिर हम पोजीशन कर सकते हैं। तो उसको फ्रेमवर्क में 2 क्वेश्चंस यही ब्रेक के, मतलब कौन चलाने वाला है, क्या चलाने वाला है, ठीक है। सो हु इज द यूजर, हाँ है ना, व्हाट्स हिज नीड, राइट? हाँ एग्जैक्टली ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ हाँ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन वी वुड लाइक? नहीं, मैंने 2, अच्छा ये 2 क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है हु सर। इज द, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि फॉर बिजनेस ऑल्सो हम प्रोडक्ट पे जितना रिसर्च करते हैं ना, ये भी आई थिंक इज अ ग्रेट टेक अवे यूजर कैन टेक। इंस्टेड वी शुड डू रिसर्च ऑन यूजर्स, ओके, बहुत ज्यादा टाइम। सो पहले प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले यूजर्स पता लगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, target जैसे market- पॉडकास्ट है आपका, ठीक हाँ है, जी, आपका सबसे मेहनत ये सवाल पे भी नहीं, आपका सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए और ये आंसर एकदम क्रिस्प होना चाहिए, who is going to listen to my podcast, एग्जैक्टली, then you will easily frame the questions। फिर तो आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एकदम मक्खन, मक्खन एकदम बराबर। बट आप बॉटम लाइन पहुंच गए कि यार मेरा सुनेगा, एकदम बॉटम लाइन जाना है। 11th क्लास का बच्चा या मेरा सुनेगा एक फ्रेश ग्रेजुएट जो कि इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो कि आप समझ रहे हो मैं, यस बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूँ। जैसे ही वो ब्रेक कर दोगे ना, फिर द होल पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉडकास्ट यू विल बी एबल टू क्रिएट कि उसको मजा तब आएगा, आना चाहिए, राइट? सो दैट्स आई थिंक is a good way to sail। Yes, that's a takeaway for me as well as the audience. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. मेरे को बहुत अच्छा लगा आपको सेम Canada ईयर बुला यार, के। सेम ईयर, पहला पॉडकास्ट है, ऑल द बेस्ट है, और मेरे को तो अच्छा लगा कि आप इस तरह से बात कर रहे हो। गुड गुड गुड, रियली गुड फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट। एंड अगर ये वीडियो आपने देख लिया है यहाँ तक, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट अबाउट हाउ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।